आप सभी को महात्मा गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हम यहाँ पे महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं। अब मैं मिस्टर अमरीश सर और दीपक सर से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आए और हमारे फ्रीडम फाइटर्स को पुष्प अर्पित करें। Good morning everyone. I hope you all are fine and celebrating every moment of your life. First of all, I would like to say Happy Gandhi Jayanti and Shastri Jayanti to all of you. I am Vanshika, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8th and I study in Genetic Public School, Salawa, Meerut. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges and I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. And my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. Now I want to say something about Gandhi Jayanti. Every year, 2nd October is celebrated as Gandhi Jayanti. While the country observes national holiday, there are multiple events like camping, rallies, poster making, and speeches are organized in every corner of the country. Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri are the inspirations of millions of people. On this day, schools organize various cultural programs to instill the leadership, simplicity and peace in students. Schools and educational institutes hold activities like art, poetry competitions, plays and several things to observe Gandhi ji and Shastri ji आइडियोलॉजीज़ वंस अगेन। मैं इसके बाद आपको एक गांधी जी के एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। ये बात 1876 की है, जब वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार उनके स्कूल में एक अधिकारी महोदय आए। उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि आप मुझे 5-5 शब्द लिख कर दिखाओ। सभी बच्चों ने 5-5 शब्द लिख दिए, लेकिन गांधी जी थे, उन्होंने 4 शब्द तो लिख दिए, लेकिन जो 5वां शब्द था वो उन पर लिखा नहीं गया। उसके बाद वो जो टीचर थे, उनके जो अध्यापक थे, वो ऐसे ही राउंड लगा रहे थे पूरी क्लास में। तो उन्होंने उसे पैर से संकेत करते हुए कहा कि तुम दूसरे बच्चे के में से देख कर लिख लो। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अध्यापक ने बहुत समझाया उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अधिकारी जो थे उनको सिर्फ 4 ही शब्द दिखाए। जब अधिकारी महोदय वहाँ से चले गए तो अध्यापक ने महात्मा गांधी जी से कहा कि जब मैंने तुम्हें पैर से संकेत किया था कि तुम उस दूसरे बच्चे की में से देखकर लिख लो, तो तुमने क्यों नहीं लिखा? तुमने मेरी बात का मान क्यों नहीं रखा? उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि आप बच्चों को नकल करने से रोकने के लिए हैं, इसीलिए मैंने चीटिंग नहीं की। इससे हमें एक बात पता लगती है कि गांधी जी बचपन से ही ईमानदार थे। तो इस कहानी से हमें ये बोधन मिला कि गांधी जी ईमानदार थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा। उन्होंने ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज हम उनको इस तरीके से पूजते हैं। थैंक यू। Good morning everyone. Firstly, I wish you very very happy Gandhi Jayanti and Shri Lal Bahadur Shastri Jayanti. So, I am Meena, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of 8th class and I study in Genetic Public School. There are 5 members in my family including me. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else.
and my long-term goal is to make my parents feel proud through my actions filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. Today, I'm here to say something about our second Prime Minister, लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री देश की आज़ादी के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे. उन्होंने हमारे राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आकस्मिक मृत्यु के बाद यह पद ग्रहण किया. शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ. इनके पिताजी का नाम श्री मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक विद्यालय में शिक्षक थे, और इनकी माता का नाम राम दुलारी था. इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के माध्यम से देश का सकारात्मक नेतृत्व किया. लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरूवादी आज़ादवाद के अनुयायी थे. इन्होंने भयानक व कठिन परिस्थितियों में भी कुल प्रदर्शन किया. लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में भोजन की कमी, बेरोज़गारी, गरीबी और कई अन्य समस्याओं जैसी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया. लाल बहादुर शास्त्री जी उत्कृष्ट इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे. उनकी इच्छा थी कि उन्हें उनके काम से याद किया जाए, न कि जो अच्छी तरीके से भाषण देकर राष्ट्र के लोगों से बड़े बड़े वादे करते हैं. इसके अलावा उन्होंने देश की सेवा और भारत को बेहतर बनाने की कोशिश की. थैंक यू. Now I would like to call on the stage Bhargav brother from 10th class. A very good morning to all my respective teachers and friends that are today present here. I hope you all are fine. Let me introduce myself. My name is Bhargav Kashyap. I am the student of 10th standard in Genetic Public School. I hope you all are fine. My father is a respectable farmer of our community and my mother is a housewife. They both love their occupation. I have learned from my parents the value of time, commitment to the purpose and hard work. And my belief in that positivity is that weapon by which any situation can be faced. Everyone has its own ambition in his or her own life, and my aim is to a computer programmer in my life. Humans are the best creation of God, but God has never created anything without any purpose. So no one should feel that he is useless in this world, and everyone should try to improve his quality or talent and represent it in front of this world, by which he can success in his or her life. जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम सभी यहाँ पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती बनाने के लिए उपस्थित हैं. तो मैं आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में घटित दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा. एक बार जब लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे उनकी सरकारी गाड़ी चलाने की जिद करते हैं, तो वह उन्हें मना करते हुए यह कह देते हैं कि यह सरकारी गाड़ी है, मैं इसका बेफिजूल के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता. लेकिन वह नहीं मानता, और जब एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी किसी काम में व्यस्त थे, तो वह चोरी छुपे उस गाड़ी को 14 किलोमीटर तक चलाते हैं और वापस वहीं खड़ी कर देते हैं. लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी को इसके बारे में उनके वॉचमैन से पता चलता है, तो वह सरकार को एक लेटर लिखते हुए यह लिखते हैं कि आप जो भी इस तेल का खर्च है वो मेरी आने वाली सैलरी में से काट लीजिए. इस बात से हमें पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी कितने सरल व्यक्ति थे. और अब मैं दूसरी घटना के बारे में बताना चाहूँगा. जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका की तरफ से भारत को धमकी मिलती है कि अगर आप युद्ध में पीछे नहीं हटे तो हम भारत को गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे. तो वह इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि हम एक समय का खाना छोड़ देंगे, लेकिन युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे. तो
यह बात वह पूरी जनता से कहने से पहले सबसे पहले जाकर अपने रसोइये से कहते हैं कि आज से एक वक्त का खाना मत बनाना। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि हमें कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखना चाहिए। That's all. Now I would like to call on the stage Gauri sister from 8th class. Please come on the stage. Good morning everyone. First of all, I wish you all both Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. As you know, today we together to celebrate two freedom fighters' birthday. So I want to tell you about Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was one of important leader of India. Lal Bahadur Shastri was the first Prime Minister of second Prime Minister of independent India. As you know, today we जब मैं कर दूं ना दोबारा कर दे तो सामने देखने के 2 सेकंड बाद। As you know, today we together to celebrate both Lal Bahadur Shastri Jayanti and Mahatma Gandhi Jayanti. Lal Bahadur Shastri was one of important leader of India. Lal Bahadur Shastri was second Prime Minister of independent India. He was born on 2 October 1904 in Mughal Sarai near Varanasi. Lal Bahadur Shastri was the son of the country who had thoughts like Mahatma Gandhi is the best identity of Indian culture. And now I want to tell you 5 things to relate it with Lal Bahadur Shastri. एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी स्टेशन से सफ़र करना चाहते थे, रेल से सफ़र करना चाहते थे। तो जैसे ये बात गार्ड को पता चलती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रेन से सफ़र करने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो ट्रेन होती है उसे थोड़ा लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रेल के यात्री होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी स्टेशन पहुंचते हैं और जो गार्ड है वो बहुत खुश होते हैं कि मैंने आपके लिए ट्रेन थोड़ा लेट करा दी। वो बहुत खुश होते हैं कि अब मुझे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अगले दिन ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है अपना काम सही से ना करने के लिए। वो बोलते कि मैंने तो आपके लिए अच्छा ही किया था, आपने मुझे सस्पेंड क्यों कर दिया? मैं तो चाहता था कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते हैं कि आपने मेरी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा, लेकिन आपने पब्लिक की प्रॉब्लम के बारे में क्यों नहीं सोचा, जो कि जिन्हें कहीं जाना था और वो वेट करते रहे, परेशान हुए। तो इस बात से ये पता चलता है कि हमें अपने कार्य को करना चाहिए और अपने कार्य को करने से पहले दूसरों को देखना चाहिए कि उन्हें हर्ट तो नहीं हो रहा। और दूसरी बात थी कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी को किसी आंदोलन में जाना था और वो तैयार होने के लिए गए, तो उनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब तक तैयार होकर आते हैं मैं उनके कपड़े निकाल दूँ। तो वो उनके कपड़े देखने लगे कि क्या पहनेंगे। उन्होंने देखा एक कुर्ता है जो बहुत फटा हुआ था। उन्होंने देखा कि दूसरे कपड़े निकाल देता हूँ, ये तो फट रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे कपड़े देखे, सारे फटे हुए थे। वो परेशान हो गए कि अब जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो क्या पहनेंगे। तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो जो उनके मिनिस्टर थे उन्होंने जवाब दिया कि आपके पास तो एक भी कपड़े अच्छे नहीं हैं, आप क्या पहनोगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अभी ठंड का टाइम है तो मैं इन फटे कपड़ों के ऊपर कोट पहन सकता हूँ जिससे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर छिपी होती है, किसी के कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी बात, उनकी वाइफ ने उनकी अलमारी देखी, उसमें एक कुर्ता था जो कि उससे भी ज़्यादा फटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको फेंक क्यों नहीं देते, ये तो फट भी रहा है और पहनने लायक भी नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा
कि ये फट रहा है, लेकिन आप इसको काम में ला सकते हो। आप इसके जो टुकड़े हैं उनसे रुमाल बना सकते हो मेरे लिए, क्योंकि जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने इसे बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया होगा। तो उनकी इस बात से ये पता चलता है कि हमें दूसरों के कार्यों को देखना चाहिए कि उसने कितनी मेहनत से आपके लिए कार्य किया है, वो आपको अपने दिल से क्या देना चाहता है। और चौथी बात, एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी एक मिल में गए, कपड़े की मिल में। तो वहाँ पर पहुंचकर जो कपड़े की मिल के ओनर थे उन्होंने उन्हें नई नई तरीके की साड़ियाँ दिखाई। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि इसका प्राइस क्या है। उन्होंने बोला कि 2000। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। उस टाइम पे 2000 रुपये शायद 2 लाख के बराबर होते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे थोड़ा लो प्राइस वाली साड़ियाँ दिखाओ। तो उन्होंने जो ओनर थे उन्होंने कहा कि ये मैं आपको पैसों से नहीं दे रहा, ये तो मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जो मैं अपनी वाइफ को अपने पैसों से खरीद कर नहीं दे सकता, उस ऐसे गिफ्ट का क्या फ़ायदा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ ये कहे कि आप मुझे एक महंगी साड़ी ला कर दो और मैं उन्हें ना दे पाऊँ, ये तो बुरा लगेगा। तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि मुझे बहुत सस्ती वाली साड़ी दिखाओ। तो उन्होंने उन्हें 200-250 रुपये की साड़ी दिखाई और उन्होंने वही खरीद ली। तो जो उस मिल के एक ऑनर थे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और फिर भी ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर प्राइम मिनिस्टर हूँ, पर हूँ तो इसी देश का नागरिक, और इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं भारत के लिए कुछ करूं, ना कि अपने लिए कुछ करूं। तो इस बात से इन चारों बातों से ये पता चलता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे ईमानदार और दूसरों के प्रति प्यार वाली भावना रखने के लिए थे। और हमारे महात्मा गांधी जी जो बोलते थे कि हर चीज़ को प्यार से जीता जा सकता है। That's all. मैं इसके बाद आपको एक और अहमद मील स्ट्राइक के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि महात्मा गांधी ने कराई थी। ये जो अहमद मील स्ट्राइक थी वो जो कपड़ों की मिल होती है उनके मालिकों के विरुद्ध थी, जो कि उनके जो मजदूर थे वो जो मिल थी उसके जो मजदूर थे उन्हें बोनस चाहिए था, लेकिन उनके जो मालिक थे उन्होंने वो बोनस नहीं दिया। तो महात्मा गांधी ने जो मजदूर थे उनसे कहा कि आप अभी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, और वे खुद भी एक भूख हड़ताल पर बैठ गए। वो उनकी पहली भूख हड़ताल थी। उसके बाद जो मालिक थे वो उन्हें बोनस देने के लिए भी तैयार हो गए। इस बात से हमें ये पता चलता है कि महात्मा गांधी जो ठान लेते थे वो करके रहते थे। हमें भी हमेशा ऐसे ही करना चाहिए, जो हम ठान लेते हैं हमें उस पर खड़ा उतरना चाहिए। थैंक यू। So now I would like to call on the stage Akanshi sister from 8th class. Please come on the stage. Good morning everyone. I am Akanshi, born and brought up in Salawa, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 7th. I study in Genetic Public School. There are 7 members in my family. I believe my strength is my attitude. I like to take up challenges. My short-term goal is to focus on my monthly test and perform better than anyone else. My long-term goal is to make my parents feel proud through my action, filled with extreme hard work. I always challenge myself to improve my progress and growth. That's all about me. Thank you for providing me with such an excellent opportunity to introduce myself. I want to tell you about Lal Bahadur Shastri. लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय में हुआ और 11 जनवरी 1966 ताशकंद उज्बेकिस्तान में निधन हुआ। भारत के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के सदस्य उन्हें थोड़े समय के लिए जेल में 1921 जेल में रखा गया।
रिहाई के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया, जहां उन्होंने शास्त्राओं में सीखा, स्नातकी किया। फिर गांधी के अनुयायी रूप में वे राजनीति में लौट आए, कई बार जेल गए और अब उत्तर प्रदेश राज्य के कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली पदों को प्राप्त किया। That's all. Now I would like to call on the stage Keshav brother from 10th class. He will come and show his talent to you. A very good morning to everyone. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरा नाम केशव सोम है और A very good morning to everyone. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम केशव सोम है और मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जेनेटिक पब्लिक स्कूल से पूरी कर रहा हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ। आज मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की 2 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो तब वो घोड़ा गाड़ी से स्कूल जाया करते थे। तब उन्होंने एक दिन अपने पिता से पूछा कि पिताजी, जितने भी मिनिस्टर्स के बच्चे हैं वो गाड़ी में स्कूल आते हैं और मैं घोड़ा गाड़ी में क्यों? तो उन्होंने कहा कि तुम लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हो, ना कि होम मिनिस्टर के। इतने सरल व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अब मैं आपको दूसरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार अनिल शास्त्री का रिपोर्ट कार्ड मिलने वाला था तो लाल बहादुर शास्त्री जी अचानक स्कूल पहुँचे। तब स्कूल के प्रिंसिपल चौंक गए और उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल प्रधानमंत्री आए हैं। इस सारे स्कूल के स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया और उन्हें ऑफिस में बैठाया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि रिपोर्ट कार्ड कहाँ मिल रहा है? तो उन्होंने कहा रिपोर्ट कार्ड 3री मंजिल पे मिल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बैठाया है? प्रिंसिपल ने कहा कि हम आपको रिपोर्ट कार्ड यहीं प्रोवाइड करा देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैं वहीं जाके रिपोर्ट कार्ड लूँगा, और वे 3री मंजिल पर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत लंबी लाइन है और प्रिंसिपल लाल बहादुर शास्त्री जी को आगे ले जाने लगे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी लाइन में लग गए और 1 घंटा इंतज़ार करके अपने पुत्र का रिपोर्ट कार्ड लिया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम के प्रति निस्वार्थ भाव दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन की एक घटना बताना चाहूँगी। वे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वे एक बार भारत के दौरे पे गए। जब वे एक गांव में थे तो उनके पैर में एक कांच का टुकड़ा चुभ गया और वे एक पेड़ के नीचे बैठे। जो उनके साथी थे उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर वहाँ पे आया, उसने लाल बहादुर शास्त्री जी की पट्टी की, उन्हें दवाइयाँ दी, और जब वे जाने लगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा आपकी फ़ीस क्या है? उस डॉक्टर ने कहा फ़ीस की क्या ज़रूरत है, आप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो और यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपकी जख्म पर मलहम लगाया। तब वह बोला नहीं, यह आपका हक है, आप फ़ीस लो। वह बोला नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसे उसकी फ़ीस दी। इससे हमें यह मॉरल मिलता है कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी अब सबको एक समान मानते थे, वैसे ही वे अपने आप को भी इस भारत का नागरिक मानते थे, और हम उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि सब एक समान है। जैसे आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज साक्षी सिस्टर फ्रॉम 10th class. A very good morning to everyone. First,
I would like to wish all of you a very happy Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. Let me introduce myself. My name is Sakshi. I study in 10th class in Genetic Public School. Today, आज मैं आप सबको गायत्री मंत्र का अर्थ बताऊंगी in Hindi as well as in English. So, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दिव्य गायत्री मंत्र का अर्थ यह है कि हमें उस परमात्मा, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक ईश्वर को अपने अंतःकरण अर्थात अपने मन में धारण करना चाहिए। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा, अर्थात वह परमात्मा जो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है वह हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करे। इन इंग्लिश इट मीन्स दैट लेट अस मेडिटेट ऑन द ग्लोरी ऑफ ईश्वर, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ अस, हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, हु इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज एंड लाइट, who is the remover of all sign and ignorance. May he enlighten our intellect. Thank you. Now I would like to call on the stage Prashant brother from 8th class. Please come on the stage. Good morning everyone. I am Prashant, born and brought up in Salava. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8. I study in Genetic Public School. There are 7 members in my family, including me. I believe my strength is my attitude and I like to take up challenges. I like to accept both success and failure in a balanced way to move forward. That's all about me. I wish you very happy महात्मा गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती। तो मैं आपको एक छोड़ जाऊंगा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा कतरा इस चमन को खिलाना है। बहुत गा लिया हमने आज़ादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, खादी की धोती पहने बापू की निशान। That's all. Now I would like to call on the stage Anushka sister from class 8 to sing a song. Morning everyone. I am Pooja, born and brought up in Salava, Meerut. Thank you for allowing me to introduce myself. I am a student of class 8 and I study in Genetic Public School, Salava. There are 7 members in my family. I believe my strength in my attitude and accept both success and failure. आज मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, दुबले पतले सरपट चलते, हाथ में लेकर लाठी रे, चश्मा लगाते चरखा चलाते, आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, बंधी पड़ी थी भारत माँ गुलामी की जंजीरों से, कई लड़ी लड़ाइयाँ पर जीत न पाए गौरों से। फिर बापू ने अकल चलाया ओ, फिर बापू ने अकल चलाया, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, चाहिए हमें आज़ादी रे, आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। तलवार चली ना गोली चली, चला न कोई खंजर,
हथियार बने अहिंसा का, ली गौरव से टक्कर, अंग्रेजों को बाहर निकाले, ओ अंग्रेजों को बाहर निकाले, बिना डंडे बिना लाठी रे। आओ मिलाऊं आपको मैं अपने बापू गांधी से, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। That's all. Thank you. Now I would like to call on the stage our respected teacher Mr. Amrit sir. So please. गुड मॉर्निंग। ये जो आज का प्रोग्राम था आप सभी को पता है कि कल ही डिसाइड किया गया और जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। ये जो कर सकता है वो जेनेटिक कर सकता है, जेनेटिक के बच्चे कर सकते हैं। ये जो कमाल करते हैं ना वो जेनेटिक के बच्चे करते हैं, अदरवाइज़ 15-15 दिन तैयारियों में लग जाते हैं और तब भी इस तरीके का जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आता है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। तो सभी बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पर आए स्टेज पर और अपना जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने दिया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं सभी बच्चों को वास्तव में अपने मन से, अपने हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ। बात करते हैं महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की। मैं आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगा कुछ, और सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आजकल के जो नवयुवक हैं और जिनकी उम्र 14 साल से 30 साल के बीच में है या 25 साल के बीच में है, जो इतिहास की किताबें कभी नहीं पढ़ते, मेरी बात ध्यान से सुनना, उन्हें इतिहास के बारे में गलत सीख दी गई पिछले कुछ समय में। और ये दुख की बात है कि बच्चे उन पर विश्वास भी करते हैं। वो बात क्या है? वो बात है जो हमारे महान देशभक्त और महान क्रांतिकारी हुए हैं महात्मा गांधी जी, उनके बारे में जो अफवाह फैलाई गई है कि उन्होंने देश के बंटवारे में योगदान दिया नेहरू जी का, या और बहुत सारी चीज़ें। कहते हैं कि उन्होंने कोई बंदूक नहीं चलाई, ना उन्हें फांसी दी गई जैसे और देशभक्तों को दी गई है। ये बात गलत है। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने अपने जीवन में, महात्मा गांधी जी ने, और ये बात सच है। आप इन व्हाट्सएप की जो बातें हैं उन पर विश्वास मत करिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होगी अगर आप ऐसे व्यक्ति के बारे में गलत सुनते हैं या सोचते हैं। वो ऐसा व्यक्ति, आप सभी बच्चे सुनेंगे, जो हमेशा समय के पाबंद रहे, जिन्होंने अपने जीवन में महात्मा बुद्ध और श्री राम चंद्र के जो जीवन है उससे अपने आप को प्रेरित किया। वो ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा विश्वास रखते थे बुरा न देखने में, बुरा न सुनने में और बुरा न कहने में। वो उनका सिद्धांत था। आदमी का अपना सिद्धांत हो सकता है। क्या सभी व्यक्ति लड़ाई वाले होते हैं? क्या सभी बच्चों का या सभी व्यक्तियों का लड़ाई वाला नेचर होता है? नहीं होता। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो शालीन हैं और उसी शालीनता से वो अपने जीवन जीते हैं और हर मसले को उससे हल कर लेते हैं। एक घटना मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलता है कि 56 इंच का सीना किसे कहते हैं। एक बार जॉर्ज, उस समय जो जॉर्ज थे वो इंग्लैंड के राजा थे और लगभग 2/3 दुनिया पर उनका शासन था। आपको पता हो, अगर इस संसार के ज़्यादातर देशों में उनके नियम चलते थे, अंग्रेज़ों का शासन था। भारत पर भी था और बहुत सारे देशों में भी था। तो ऐसे महान शासक ने कहा कि उस गांधी जी को मेरे सामने बुलाइए जिसकी आप इतनी बढ़ाई करते हो। जॉर्ज ने इनविटेशन भेजा कि उस फकीर को मेरे सामने बुलाइए।
गांधी जी गए। तो जब कहीं पे जाते हैं ना, एक प्रोटोकॉल होती है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से करना है, सब कुछ पहले ही बता दिया जाता था। तो गांधी जी वहाँ गए। गांधी जी को पहले ही बताया गया सलेटी रंग की ड्रेस पहन के आनी है। गांधी जी जहाँ भी इंग्लैंड में रुके हुए थे, वो एक जो तांगा होता था उस समय जाने के लिए, वो वहाँ से तांगे से निकल जाते हैं, और जब वे तांगे से उतरते हैं, चर्चिल देखता है और बताता है जोर से, ये तो अधनंगा है, कोई सलेटी कोट पैंट नहीं पहन रखा। तो जैसे ही उसने देखा जॉर्ज ने, ये कैसा व्यक्तित्व है, कम पहनते थे, धोती पहनते थे और उसे ही अपने शरीर पर लपेट लेते थे। उससे पहले जब वो बचपन में थे तो सारे कपड़े पहनते थे, कोट पैंट भी पहनते थे, और भी जो कपड़े हो सकते हैं वो पहनते थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये अंग्रेजी कपड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के कपड़े ये हैं, धोती कुर्ता, तो उन्होंने उस समय पहनना शुरू करा। ऐसा होता है त्याग, देशभक्ति, ऐसे बोलते हैं देशभक्ति, जो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। जब चर्चिल से बात करी ना उन्होंने, चर्चिल से उन्होंने कहा कि आप इन आंदोलन वगैरह को छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ हम आपको जेल में बंद कर देंगे। तो गांधी जी ने पता क्या जवाब दिया था? जी ने कहा था, मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप जैसे कितने आए और कितने चले गए, हम आपको इस तरीके से अपने इस देश को नहीं छोड़ सकते। ये देश नहीं है, ये कोई धरती नहीं है, ये हमारी माँ है। उस शासक के सामने इस तरीके से बात करना, क्योंकि लोग डरते थे उनसे, उनके नाम से डरते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा जवाब दिया कि आप भी याद करेंगे। ऐसे थे गांधी जी। बहुत सारी घटनाएं बच्चों ने बताई जो हमें इंस्पायर करती हैं। शास्त्री जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो हमें इंस्पायर करती हैं। हमें अपने उन व्यक्तियों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इतने सादा जीवन था इन दोनों का जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें इनके जीवन से वास्तव में शिक्षा लेनी चाहिए और जो इनके बताए गए जो रास्ते हैं उन पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे सफाई का इन्होंने पहले से ही, ये तो अभी चला है, लेकिन पहले से ही जो साफ़ सफाई थी उसका पूरा ध्यान रखते थे। समय के बहुत पाबंद थे, कभी भी मतलब कुछ भी स्थिति हो जाए, लेकिन वो कभी भी मतलब अहिंसा का रास्ता हमेशा जो अपनाते थे, हिंसा नहीं करते थे। तो वो उनके अंदर था, उनके खून में था, ठीक है। और उसी डंडे के बल पर, उसी चरखे के बल पर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो उन्हीं दोनों आत्माओं को आज हम नमन करते हैं। अपना मतलब पूरे मन से हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी करते हैं। ऐसे ही आपको जब भी आपको समय मिले आप इनके जीवन के बारे में पढ़िए और हमेशा जो भी आप पढ़ते हैं उससे हमेशा इंस्पायर होने की कोशिश करिए, जो कोई नहीं। थैंक यू। Now I would like to call on the stage Shravya sister from 10th class. Good morning everyone. First of all, I wish you a happy Mahatma Gandhi Jayanti and Lal Bahadur Shastri Jayanti. जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो महात्मा गांधी हैं वे सत्य के साथ थे। मैं आपको महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगी। वे सबसे पहले 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। वे साउथ अफ्रीका अपनी लॉयर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। वे 1915 में वहाँ से वापस आए और वे अपने साथ सत्याग्रह का आइडिया लेकर आए थे। सत्याग्रह का मीन्स है ट्रुथ, और अग्रह का मतलब है बनाए रखना। सत्याग्रह का मतलब है सत्य को बनाए रखना। गांधी जी की फिलॉसफी थी कि यदि आप सत्य के साथ हो और अन्याय के विरुद्ध, तो आपको यदि कोई आप पे अन्याय कर रहा है उससे लड़ने के लिए आपको किसी ताकत की ज़रूरत नहीं है। आपको उसे ये महसूस कराने पर मजबूर करना है कि क्या वो जो कर रहा है वो सच, वो ठीक कर रहा है। गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि आपको वॉयलेंस से काम नहीं करना, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको शांति से दूसरे को समझाना है।
उन्होंने अपना जो सत्याग्रह का जो आइडिया था उन्होंने शुरू किया। उसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसके बाद में उन्होंने 1916 में सबसे पहले चंपारण बिहार में किया। चंपारण बिहार में क्या करा था उन्होंने, इंडिगो प्लांटेशन थे उनके अगेंस्ट गए थे वे। उसके बाद में वे 1917 में खेड़ा गुजरात में गए। खेड़ा गुजरात में क्या था, जो वर्कर्स थे, वर्कर्स मतलब जो पीपल्स थे, वे उनकी क्रॉप जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो उन्होंने जो वहाँ के ब्रिटिश थे उन्होंने टैक्स लगाया हुआ था हर चीज़ पे। तो उन्होंने उन्हें समझाया कि इनकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो चुकी है, इसके वजह से इनके पास पैसे नहीं है आपके टैक्स देने के लिए। उन्होंने वहाँ पे भी सत्याग्रह के उससे सक्सेस हासिल की। उसके बाद में वे 1918 में गए, अहमदाबाद गुजरात में गए वे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उन्होंने मील वर्कर्स का सपोर्ट किया था, अगेंस्ट किया था मील ओनर्स के। महात्मा गांधी ऐसा नहीं कि वे ब्रिटिश के अपोज में चलते थे, वे जो मतलब अन्याय के अपोज में चलते थे। वे जो मील ओनर्स थे, कॉटन मिल ओनर्स, वे इंडियन ही थे। वे हमेशा सत्य के साथ चलते थे। उन्होंने वहाँ पे भी सक्सेस हासिल की। थैंक यू। आज के लिए Now I would like to call on the stage Mr. Deepak sir. He will come on the stage. A big hand for him. अद्विका बोलना शुरू कर। बोले बेटा, हाँ बोला। सिचुएशंस मेक अस स्ट्रोंगर। जो दशाएं हैं, जो हमारी स्थितियां आती हैं जीवन में, वो हमें मजबूत बनाती हैं। और श्रव्या, जो भी चीज़ हम करते हैं वो हमारे काम आती है। मतलब परिश्रम जो है ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि कल मेरा टेस्ट है। परिश्रम जो है ना, प्रतिदिन की हमारी एक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटी का हमें कभी भी कुछ भी पता नहीं है कि वो कब आए। तो अगर हम प्रिपेयर्ड हैं तो जैसे ही वो आएगी वैसे ही हम उसके साथ चल देंगे, यानी उसे ग्रैब कर लेंगे। और अगर हम पूरी तरीके से तैयार नहीं हैं तो आप कहोगे कि सर तैयारी कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू मेरा 5 दिन के बाद कंडक्ट कराना। 5 दिन में लाखों की भीड़ इंटरव्यू दे देगी और उसमें से कोई ना कोई तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो वो वाली चीज़ मैंने कभी बचपन में ही पढ़ा था, ये वाली चीज़ कि आपको तैयार रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है, जैसे ये आ रही है, देखो अपॉर्चुनिटी। महान दिन है 2 अक्टूबर, और अमरीश जी ने इसके बारे में काफ़ी बताया है। और मैं आपसे यही देखो, आप फ्यूचर हो, आप फ्यूचर हो, और ये साइकिल चलती रहती है। हम अब आधे से ज़्यादा, मतलब हमारे जैसे व्यक्ति आधे से ज़्यादा रह चुके, अब हम चलने की तरफ होंगे 5, 7, 10 साल में। आपका वो पड़ाव आएगा जब आप कंट्री को चलाओगे, अपने गांव को चलाओगे, परिवार को चलाओगे। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं। देखो, हमें कभी भी ना, जब तक रिलायबल सोर्स ना मिले, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा संस्था हमें ना बताए जो विश्वसनीय है, तब तक किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये तो इतिहास की बात है। मतलब जो व्यक्ति हमारे नोट पे छपे हुए आते हैं तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा ही होगा। मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता हूँ और उसे मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट मानता हूँ। इस टाइम तो आज मौका है जो उन्होंने त्याग किए अपने जीवन में, उनको सेलिब्रेट करने का और उन्हें याद करने का। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं और हम 10th में पढ़ भी रहे हैं इस चीज़ को कि जब गांधी जी के सामने इतना बड़ा मिशन था तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचा कि अंग्रेज़ों को अगर भगाना है तो हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही मिशन के अंडर लाना पड़ेगा। यही पढ़ रहे हैं ना। परिवार में 5 मेंबर्स तक नहीं आते एक मिशन के नीचे। इतने करोड़ की जनता को उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के ऊपर बिलीफ दिलवाना। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो नहीं जानता है मैं बता देता हूँ, जिसका विचार करना भी कल्पना में हो। आज़ादी वो सिर्फ कल्पना मात्र थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन इतना शक्तिशाली था, जैसे अमरीश जी ने बताया 2/3 हिस्से में उनका राज था। और उनको भगाने की सोचना तक भी ऐसा लगता होगा जैसे मजाक कर रहे हैं, पागल हो गया। तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे लोगों का विश्वास दिलवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा होगा। अगर आप शिक्षा लेना चाहते हो ना, तो आप छोटे से कण से ले सकते हो। और अगर आपको शिक्षित ही नहीं होना है ना,
चाहे आपके घर में कितनी भी रामायण महाभारत रखी हों, उनके ऊपर धूल चढ़ी रहेगी। तो ये सिर्फ अपनी अंतरात्मा से आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रोज़ क्या हम स्पीचेस दे रहे हैं, तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलवा दूं, और मैं उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। हमारे 21 इंटरव्यू हो गए हैं साक्षी, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। मैं 5 या 7 दिन में हमारे काफ़ी बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हुआ। भगवान के आशीर्वाद से अभी अभी साक्षी ने लास्ट की लाइन बोली कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। सन्मार्ग, तो अगर भगवान ने बुद्धि दी है तो उसका ये भी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो किस मार्ग की तरफ जाएगी। तो भगवान ने ही ये करवाया कि भाई अब पहुँचो उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पास जो बच्चे किसी तरीके से लो फील करते हैं। और आप यकीन मानिए, मैं पिछले 5 दिन में या 4 दिन में 22-23 बच्चों के पास में शायद मैं पहुंचा हूं, और मैं शायद गलत हो सकता हूं, 20 से 25 बच्चे हो सकते हैं, मैं प्रिसाइसली नहीं बता रहा। अमरीश जी, उनका पर्सपेक्टिव बदल गया जब हम उनकी फेस रीडिंग करते हैं। तो उनका अब इंटरव्यू होने के बाद में जो पार्टिसिपेशन है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम उन्हें ये एहसास कराएं कि कोई जन्म से नहीं आता इस तरीके से, वो अपनी दशाओं के कारण हो जाता है। जब हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम लड़ नहीं पाएंगे, तो वास्तव में कमज़ोर हो ही जाते हैं। वहाँ जाना है, जाना, इन्हें भेज दो 5 मिनट में, 5 मिनट में भेज दो। हाँ, गाना गाओ। हाँ। उन बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ, बात करना चाहता हूँ। मैं कल भी बात करना चाहता था, बट कल सेशन बहुत लंबा रहा। सेशन बहुत लंबा रहा और चीज़ें वृद्धि की तरफ हैं, सुधार की तरफ हैं। सबका नाम भी लेना चाहता हूँ, बट कई बच्चे रह जाते हैं। कभी कभी यार किसी दिन आपसे इंटरेक्शन ना हो पाए तो आप ये मत मानना कि भूल गए हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है आपने पूजा का देख लिया, तो जैसे 6 बच्चों का हमारा बैच कल आया, अच्छा लगा? कल लगा? मेरा लास्ट में सिर्फ इतना कहना है, बी बेटर, राइट? अपने से बेहतर बनो जो आप कल थे। बस आप किसी से compete मत करो, चलो अपने से कर लो। आप जब अपने से compete करोगे, जो मैं कल था आज मैं कितना हूँ, तो आप अपने आप ही बेहतर होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। हर किसी के परिवार में बड़ों को उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो और अपने आप को थोड़ा सा अनोखा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो वाली भीड़ कम मिलेगी और इधर जो साधारण रह जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन भाई साहब ने तो आंधी मचा दी आज। बेटा गाना गा दो। हाँ, बंद कर देना बेटा। हाँ, एक और चीज़ कहूँ, एक और चीज़ कहूँ बस लास्ट में। वंशा, यहाँ पे ये हमारे बच्चे जो हैं, ये जो बच्चा है हमारा, ये जेनेटिक जब आया था, ये भी तभी आया था। हाँ, जब सबसे शुरू का बच्चा है ये वंश हमारा, है वंश? नर्सरी से पढ़ रहे हैं, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्कूल का। इंटरव्यू कब करें? सर कभी भी कर लो। कभी भी कर लें? यस सर। तो इसका इंटरव्यू करेंगे किसी दिन बढ़िया तरीके से। तो मेरे मन में बहुत सारे बच्चों के हैं, मतलब सारों के ही हैं, बट आपको भी पता है कि 5 ही 6 बच्चों का इंटरव्यू लेने में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारा समय चाहिए होता है। तो बारी बारी से आप भी विश्वास रखो, सबका नंबर आएगा। और आपने मोहल्ले पड़ोस में भी बताते रहो कि आप परेशान ना हो, नंबर सबका आएगा और भगवान ने चाहिए तो कई बार आएगा। ये जो दीपक जी के शब्द हैं ना, बहुत वजनदार है, ये इनमें सच्चाई है। आप लोगों के साथ जो भी मेहनत की जा रही है, अगर आप भी उसमें वेट करना शुरू कर देंगे तो जो हमारी रफ्तार है, अभी तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं, वो बहुत तेज़ हो जाएगी। आप अपने घर पर जाएंगे, अपने बारे में मतलब कुछ चीज़ें अपने आप से ही पूछ लो ना
कुछ क्वेश्चंस अपने आप से ही पूछ लो, जैसे दीपक जी पूछते हैं, कैसे पढ़ाई करते हो, स्कूल के बारे में क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या बनना चाहते हैं, और जब आप अपनी क्लास में होते हो या अपने से छोटे बच्चों को आप क्या फील कराना चाहते हैं, अपने तरफ से छोटे बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं। ये वाले क्वेश्चन आप अपने घर जा कर के अपने आप से ही पूछिए और उसे बताने की कोशिश करिए, तो आपका जो फ्लो है वो हो जाएगा। जब आप पहली बार, और सबसे मेन बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो होती है भय। भय आपको रोकता है।